Good morning, students. Good morning. Hello, am I audible? Yes, sir, audible. Okay, good. So, once again, welcome back in social science subject live class for standard 9th. Okay, so yes. Good morning to all of you. Good morning, sir. Morning, sir. Well, Morning. Morning, sir. so before proceeding to today's topic, just a 1 minute talk with all of you. Have you people started completing your portfolio notebook? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so keep on working all the tasks which are being assigned to you time to time. Okay, so kindly complete your notebooks whenever there is no class. Okay, because I could ask for the notebook correction anytime. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. notebook correction के लिए कभी भी मंगवाई जा सकती है. So all of you please be careful and keep on completing your task. Okay? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay. So today Divyani Dhande has also joined the class. Welcome back, Divyani. Divyani Dhande. Yes, sir. हाँ, good morning बेटा. Good morning, sir. Good morning बेटा. Just a minute. Yes. So as I can see, 34 participants have joined us now. So let us start with our yesterday's topic. Okay, where we have left. Is the textbook visible now? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. So what I think in yesterday's session, we have completed up to this particular topic. Okay, we have completed the summary definition. Is it clear? In yesterday's topic, we have completed the summary definition, I think. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. We can. So now let us come to this exercise. Okay. This is what written as check your progress. Now what it is saying, read these 5 examples of working or denial of democracy. Match each of these with the relevant feature of democracy discussed above. Okay. So for example, the first example is what? King of Bhutan has declared that in future he will be guided by the advice given to him by elected representatives. ओके, यानी अब फ्यूचर में भूटान का राजा जो है, जो भी डिसीजन लेगा वो किसके हिसाब से लेगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हिसाब से लेगा. नाउ दिस फॉर एग्जांपल इज ए कंडीशन. ओके, नाउ यू हैव टू टेल कि आउट ऑफ दीज फीचर्स व्हिच फीचर इज एप्लीकेबल इन दिस कंडीशन. मेरी कही गई बात आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है. नाउ so we are not doing it right now because this would be the part of your today's homework. Tomorrow we will again do the discussion on this one and let us see
हाउ मेनी करेक्ट आंसर यू पीपल गॉट? समझ में आया? ठीक है, यस सर। ठीक। तो अपन कल देखेंगे sir. कि आप में से कितने लोगों को कितने आंसर करेक्ट मिले हैं, वन थिंग, ठीक। एंड देन आफ्टर once we done the correction part, the same exercise has to be done in your portfolio notebook. Is it clear? यस सर। Yes, sir. कल के डिस्कशन के बाद में सारा आंसर वगैरह करेक्ट चेक करने के बाद फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इसको पोर्टफोलियो नोटबुक में करेंगे। चलिए, सो नाउ लेट अस कम टू टुडेस टॉपिक एंड द टॉपिक इज व्हाई डेमोक्रेसी, है ना। अभी जो टॉपिक है बोल रहा है कि व्हाई डेमोक्रेसी। सो इस सेक्शन में बेसिकली डिस्कशन इस बात पे होगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट क्यों की गई, दैट इज व्हाई द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव टेकन अप or have adopted the democratic form of government. Is it clear? यस सर। Okay. So again, it's a storyboard, basically a discussion in classroom. Okay. So an argument broke out in Madam Lingdo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy. And now she asked the student if they thought democracy was the best form of government, है ना। So वही क्लास 9 का एक सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट किया गया है। So after the completion of the last section, the teacher has asked the student, now what do you think, is democracy a best form of government? ठीक है, so everyone has something to say. So that is what debating on the merits of democracy. So one of the student, Yolanda, what she says, we live in a democratic country. All over the world people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. It means all the great people have said nice things about democracy. So it is obvious that democracy is best. Then why do we need to debate this, है ना। योलांदा का क्या कहना है, हमारा इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड के मैक्सिमम पार्ट में लोग अपने कंट्री को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, ठीक। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर, जो कंट्रीज पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो भी अब क्या हो रही हैं, डेमोक्रेटिक बन रही हैं। All great people have said nice things about democracy. डेमोक्रेसी के लिए इतना अच्छा अच्छा बोला गया है, तो फिर जब सब कुछ अच्छा अच्छा बोला जा रहा है तो इसमें बहस की क्या जरूरत है। क्लियर कट, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वन मोर स्टूडेंट आर्ग्यू, बट मैडम had said we should not accept something just because it is famous, just because everyone else accepts it. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? एक स्टूडेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट किया कि परंतु हमें मैडम ने क्या बताया, हम किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो फेमस है ना। कई बार हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो किसी एक चीज के, किसी एक सिचुएशन के फेवर में है, दे ऑल वुड बी रॉन्ग। लोग क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड यस इट एक्चुअली ए रॉन्ग पाथ। जैनी जो थी वो डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज, परेशान और खफा थी। व्हाट शी सेज, यस इट एक्चुअली ए रॉन्ग पाथ, गलत है। व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू अवर कंट्री, डेमोक्रेसी ने हमारे देश के लिए आखिर दिया ही क्या है। 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country, है ना। डेमोक्रेटिक सेटअप में आज 70 साल बीत चुके हैं, परंतु हमारा कंट्री अभी भी कैसा है, गरीब है। So Rivian says
But what has democracy got to do with it? Rebian, who was a supporter of democracy, so what he argued, इसका democracy का इससे क्या लेना देना है? समृद्धि हरकांडे, is my voice coming? समृद्धि? Yes, sir. हाँ, ठीक है. So do we have poverty because we are democratic, or do we have poverty despite being a democratic? तो रिबियान जो था वो डेमोक्रेसी का थोड़ा सा सपोर्टर था. उसने कहा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अरे गरीबी का और अमीरी का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना? तो कोई व्यक्ति क्यों इसलिए गरीब है कि वो डेमोक्रेसी में है? नहीं, उसकी गरीबी के और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. ठीक है, सो गरीबी का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है. Now this was the argument. This was the argument given by one of the student, Ribian. ठीक है. Now again the next student says. Now who is the next student? Jenny. Whatever. How does it make a difference? डेमोक्रेसी हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है. दिस पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, परंतु इससे इतना तो समझ में आता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. ठीक, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट केओस, instability, corruption and hypocrisy. ठीक, जैनी क्या कहता है, डेमोक्रेसी में सब तरफ केओस है. केओस का मतलब होता है उथल पुथल, है ना, कहीं कोई डिसीजन सही तरीके से लेने वाला नहीं है. जब देखो तब कुछ ना कुछ हंगामा होता रहता है. ठीक है, तो देयर इज नो करेक्ट वे. डेमोक्रेसी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, सब अस्त व्यस्त चलता है. हाँ सर, इन फ्यूचर अगर कोई डेमोक्रेसी से को भी अच्छी गवर्नमेंट बना ले, मतलब कि डेमोक्रेसी की जैसे गवर्नमेंट में जो लॉ होते हैं उसको इम्प्रूव करके ऐसे कोई कर सकता है अपनी गवर्नमेंट बना के अलग से? देखो बेटा, क्या होता है, किसी भी कंट्री में जो सिस्टम ऑफ रूलिंग है, यानी शासन का तरीका, वो उस देश के लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं. परंतु यदि देश के लोग, उस कंट्री के लोग जागरूक नहीं हैं, है ना, उन्हें किसी भी सिस्टम ऑफ रूल के अगेंस्ट में एनकरेजमेंट नहीं है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो पावरफुल पीपल हैं उन्हें इस बात का मौका मिल जाएगा कि वो क्या कर सकें, कंट्री के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर सके. ठीक, अब कंट्री के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर सके, इसका सेंस ये हुआ कि देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कोई भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दूसरे लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इतनी बात आई समझ में? इट इज पॉसिबल दैट फ्यू पीपल कैन चेंज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब वो लोग उस कंट्री के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उस देश के जो नागरिक हैं, वो अपने कंट्री के रूल को लेकर के कितने ज्यादा जागरूक हैं. ठीक, अब जागरूक से सेंस ये है कि यदि लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बाढ़ में जाए, तो यदि लोग इस बुद्धि से चलेंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में कोई भी उस कंट्री के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पर क्या कर सकता है, अपना कंट्रोल कर सकता है. इतनी बात आई समझ में? यस सर. ठीक है, तो देखो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा,
डिपेंड करता है इस पीपल पे, ठीक है, गॉट इट। चलिए, सो व्हाट जेनी इज सेइंग कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट केओस, है ना, जब देखो तब तो झगड़े होते रहते हैं, ठीक, पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्फ, पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री, देश के लिए कोई केयर करता ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते, ठीक। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हैज आर्ग्यू, ओके नाउ, तो अगला स्टूडेंट जो था उसने आर्ग्यूमेंट क्या किया, व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड। तो अभी इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, गो बैक टू ब्रिटिश रूल, चलो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है तो क्या करें, वापस ब्रिटिश रूल में चले जाए और इनवाइट सम किंग टू रूल दिस कंट्री, या इस देश को किसी राजा के हाथ में सौंप दें। अरे तुम्हें डेमोक्रेसी पसंद नहीं है तो बताओ क्या करें, क्या ब्रिटिशर्स का राज अच्छा था, या फिर एक काम करते हैं किसी मुगल एम्परर को बैठा देते हैं, ठीक। नाउ वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेज, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज स्ट्रॉन्ग लीडर। अब इसका दिमाग बिल्कुल अलग चल रहा था, उसने क्या बोला, मेरे हिसाब से हमारे कंट्री को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, someone who does not have to bother about election and parliament, ऐसा व्यक्ति जिसे इलेक्शन और पार्लियामेंट से कोई लेना देना ना। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, एक लीडर के पास में सारी पावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में जो लीडर्स हैं वो सिंगल लीडर ना होने के कारण पार्लियामेंट में या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, केओस हो रहा है। So he should be able to do whatever is needed in country's interest. उस एक व्यक्ति के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स होना चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सके। That alone can remove corruption and poverty from the country. उसी कंडीशन में कंट्री से करप्शन और पावर्टी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, ठीक। Someone shouted, किसी ने कहा कि this would be dictatorship, ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ठीक। So one more student argued, what if that person start using all this power for himself and his family, what if he is corrupt himself। वो जो स्ट्रॉन्ग लीडर है ना, यदि वो क्या हो जाए, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो क्या होगा, व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ, यदि वो खुद करप्ट हो जाए, ठीक। तो रोज ने क्या कहा, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। अरे मैं बेईमान व्यक्ति की बात थोड़ी कर रही हूँ, व्हाट शी सेज, मैं तो एक ऑनेस्ट सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर की बात कर रही हूँ, ठीक। नाउ वन मोर स्टूडेंट आर्ग्यू, but that is not fair, you are comparing a real democracy with a ideal dictatorship, ठीक है, ये फेयर नहीं है। तुम डेमोक्रेसी को किससे कंपेयर कर रहे हो, आइडियल डिक्टेटरशिप से, ठीक है। बट वी शुड कंपेयर एन आइडियल सिचुएशन विद आइडियल एंड रियल विद रियल, ठीक। दूसरा, जितने भी डिक्टेटर्स हैं रियल लाइफ में, ठीक है, दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल। It is just that we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यदि किसी एक सिंगल पर्सन को पूरी पावर पकड़ा दी जाएगी तो क्या होगा, इन दैट केस वो जो व्यक्ति है वो अपनी पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इन दैट केस दूसरा, इस प्रकार के पर्सन से गेट रिड मतलब पीछा छुड़ाना भी आसान नहीं है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. कावेरी Sir? धानोरकर, यस बेटा। Sir, sir, ever since in history, any type of dictatorship person is there who has not even corrupted anything and removed poverty.
you want to ask a question ki is there any example in a history where a dictatorship and the dictator is not corrupt and he is an ideal dictator? yes sir. है ना बेटा? there is no such example in the country and not in India but also in any other part of the world. Wherever the dictators were there, they were the most corrupt, selfish and brutal. क्योंकि डिक्टेटर जो है वो पावर में कब आ पाता है? डिक्टेटर पावर में, सत्ता में उसी समय आ पाता है जब क्या है उसने बाकी के सारे सिस्टम को रिमूव करके और अपना एक सेपरेट रूल एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो डिक्टेटर क्या करेगा? डिक्टेटर एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिमूव करके और खुद की पावर में आएगा। अब जब वो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिमूव करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? सेल्फिशनेस और ब्रूटलनेस। जो ताकतवर है, जो हिम्मतवर है, जो दूसरों से लड़ सकता है, वही तो क्या करेगा? डिक्टेटर बनेगा ना। यस सर। हाँ, तो पता चला कि डिक्टेटर बनते बनते वो हर वो काम कर सकता है जो करप्ट है, सेल्फिश है और ब्रूटल है। ओके सर। है ना? गॉट द लॉजिक ऑफ दैट? यस सर। अच्छा, देयर इज वन रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन केयरफुली। समृद्धि, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Now this is special for you. Beta, you are able to see the screen? Yes, sir. Right now on screen your name is shown? Yes, sir. ठीक, अभी ध्यान से देखो तो समृद्धि की स्पेलिंग में एस स्मॉल है। ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब इसके कारण क्या होता है कि मुझे जब अटेंडेंस लेनी होती है तो स्मॉल लेटर होने के कारण आप लोगों के जो नेम है वो सबसे लास्ट में चले जाते हैं। ठीक है? जबकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वो थोड़ा सा पहले आता है। सो व्हाट ऑल ऑफ यू नीड टू डू, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स जिनके नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, ध्यान से सुनना। ठीक है? जिन्होंने नेम का फर्स्ट लेटर कैसा लगा रखा है? स्मॉल। ठीक, हीरक तिवारी, आर यू लिसनिंग? हीरक तिवारी? यस सर। हाँ, तो तुमने टीचमेंट पे जब अपना नेम डाला था तो हीरक का एच स्मॉल है ना? यस सर। हाँ, तो अभी क्लास एंड होने के बाद में उसमें एक एडिट ऑप्शन आता है, उसमें आप लोग क्या करेंगे? अपने नेम्स एडिट करेंगे। ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. और फर्स्ट लेटर कैसा होगा? Capital. कैपिटल। इज इट क्लियर? Yes, sir. So I am calling the name of those students, those who are having their first letter in small. So Hirak Tiwari, Kaveri Dhanurkar, Kia Reddy, okay. Then Prajwal Panghate. Prajwal, are you listening? प्रज्वल पानघाटे, उसको ठीक करना। चलिए, पूजा विधाते, पूर्वा पारखी, पूर्वेश मोहन, सचिन वर्मन, समृद्धि, सानिका देवतले, सारा लटारे, यशवी देविकर। यशवी देविकर, समझ में आया? इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसमें एडिट करने का एक ऑप्शन आता है और उस एडिट ऑप्शन की हेल्प से आप लोगों को क्या करना है, नेम का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, बाकी की सारी चीजें कैसी होंगी, स्मॉल। इज इट क्लियर? Okay, sir. अच्छा, दूसरा, सार्थक बाग मारे, श्रुति शर्मा, लिसन। सार्थक, तुम्हारा सारा नेम कैपिटल में है और श्रुति शर्मा तुम्हारा भी पूरा कैपिटल में है, तो व्हाट यू नीड टू डू, ओनली द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। इज इट क्लियर? Okay, sir. हाँ, तो एडिटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें एडिट करके और ठीक कर देना नेम। चलिए, सो दैट इज व्हाट द एंटायर डिस्कशन। ठीक, अब वो जो इतना सारा डिस्कशन उस क्लास में बच्चों के बीच में हुआ, ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली इट केम, ठीक, सो द टीचर वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट, है ना, जो उनकी टीचर थी, शी वाज लिसनिंग द होल डिस्कशन कि हाउ द स्टूडेंट्स आर डूइंग अ डिस्कशन ऑन डेमोक्रेसी। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज his own opinion, हर स्टूडेंट का क्या था, अपना ओपिनियन था। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक, सो नाउ द टीचर स्टेप्ड इन। इतना डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद में अब टीचर ने क्या किया, इस डिस्कशन में स्टेप्ड इन मतलब नाउ टीचर स्टार्ट इंटरफेयर। व्हाट शी सेज, I was delighted to see you all arguing so passionately. I don't know who is right and who is wrong. That is for you to settle. मैडम ने कहा कि मुझे ये बड़ी खुशी है कि तुम सब लोग डेमोक्रेसी को लेकर के इतने अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। I don't know who is right and who is wrong, है ना, अभी ये नहीं कह सकते कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। That is for you to settle. ये आप लोग फिर से डिस्कस करके डिसाइड करना। But I did feel that you all wanted to speak your mind. परंतु मैडम ने क्या कहा, परंतु मुझे जहां तक लगता है you all wanted to speak your mind। अब you all wanted to speak your mind का मतलब क्या है कि आप सभी लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, यानी everyone wants to express their views। हर व्यक्ति अपना व्यू, अपनी ओपिनियन रखना या कहना चाह रहा है। You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt। ठीक, आपको कभी कभी बुरा भी लगता है ना, जब आप अपनी बात कहना चाहते हैं और कोई आपको क्या कर रहा है, स्टॉप यानी टोक देता है। If someone punished you for saying what you felt, would you be able to do that in a country that is not democratic? ठीक है, और अपनी बात को रखना, अपना ओपिनियन देना, ये आजादी, ये फ्रीडम हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अवेलेबल है, दिस वी हैव ओनली एंड ओनली इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, सो जो फाइनल कॉन्क्लूजन जो टीचर ने बताया, ठीक है, वो कॉन्क्लूजन टीचर ने क्या बोला, टीचर का कहना ये है कि वर्ल्ड के किसी भी अदर form of government में, in any other form of government, this freedom is not available to anyone। ये जो फ्रीडम है ये वर्ल्ड के किसी भी अन्य डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी को भी अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी बात फ्रीली होकर के रख सकते हैं। सो दिस इज ओनली द डेमोक्रेसी विच प्रोवाइड
the right to each and every citizen to express his or her view freely. ठीक है, and that is a good argument for democracy. यही डेमोक्रेसी के फेवर में एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट है कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वाई डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वर्ल्ड के और किसी भी, संसार के और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वेदर इट इज ए डिक्टेटरशिप, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल डू नॉट हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली। लोगों को फ्रीली, आजादी के साथ में अपने व्यू एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अवेलेबल है? इट इज ओनली अवेलेबल इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, एंड दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि डेमोक्रेसी क्यों सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है, क्योंकि बाकी के अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल हैव मोर फ्रीडम। लोगों को क्या है? फ्रीडम है, आजादी है। दे कैन स्पीक आउट। वे लोग क्या करते हैं? अपनी बात रख सकते हैं, लोगों को अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द बेस्ट आर्गुमेंट फॉर मीन्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. only 2 minutes are left. Shambhavi, are you able to listen my voice? Shambhavi, are you able to listen my voice? Shambhavi, Shambhavi, okay. Soumya, Soni, is my voice is audible? Yes, sir. Okay. Sir, Shambhavi, just a sir, minute. that madam. is, Wait, Shambhavi, Shambhavi, switch on your mic. Shambhavi, mic open करो, बोलो, बोलने की कोशिश करो। Yes, now Sandhya, please ask your question, beta. sir, this is activity 6 now, which you gave just now. Beta, now I am not doing the counting each and every time, okay? Are you listening? Okay, sir, no problem. I am not doing the counting in this way, na? Because activities are coming according to the chapter and just I am assigning them. So now you have to take care how many activities are given. So accordingly you decide what would be the serial number of this activity. ठीक है? Okay, sir. चलिए, शाम्भवी, चलिए, आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। Try to speak something. Sir, now it is audible. Yes, now it is audible. चलिए, अभी जैसे तुमने उसमें
वॉइस का बटन ऑन किया था, वैसे एक वीडियो ऑन का बटन होगा, जरा वीडियो ऑन करो। उसी के बगल में है वीडियो का बटन भी, कैमरा ऑन होगा, चेक करो जरा। Yes, sir. हाँ, ट्राई टू डू इट। हाँ, गुड। आया कैमरा? Yes, sir. हाँ, बट नाउ वी, हाँ गुड, चलिए। So now please introduce yourself to your class fellows. Introduce yourself to your class fellows. Good morning, everyone. I'm Shambhavi Dayan. I just moved here from Gujarat. Hope we can all be friends. Okay, Shambhavi, there is some issue with the internet speed. Okay, well, so leave now, and now you can switch off your video. Okay, listen, students. Yes, Bhumika, Sachin Burman. Yes, sir. So now all of you please complete your portfolio notebooks. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And we have completed the 3 chapters till today. अभी तक हमने 3 chapters complete किए हैं. Geography chapter 1, Geography chapter 2 and History chapter 1. इतने ही हुए ना हमारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें से I have to provide you the notes of History chapter 1. मुझे जहाँ तक ध्यान है, मुझे आप लोगों को History chapter 1 के notes देना बाकी है ना? Yes, sir. Yes, sir. I will give the notes within a day or two. 1 या 2 दिन में notes आप लोगों को भेज दिए जाएंगे. Till all of you should complete the notes, that is question and answers of Geography chapter 1 and Geography chapter 2. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So Okay, sir. that's all for today, friends. Thank you.